Hi friends, let's start with the second part of the chapter, nucleus. The second part is titled Nature Radioactivity. Now radioactivity का पहले meaning समझते हैं क्या होता है. It is activity of emitting radiations. Radio is a short form of radiation. Here radio is taken as short form of radiations. So activity of emitting radiations, that's called radioactivity. We find that certain heavier elements like uranium in their natural form, they are highly unstable. In order to achieve stability, they reduce their energy. That energy is released in form of radiations, and that property of emission of radiation in their natural form, that's called natural radioactivity. So activity of emitting radiations in their natural form, heavier elements like uranium do these things. The elements of actinide and lanthanide series, they do exhibit this property of emitting radiations in their natural form because of their instability. That's the main thing. अच्छा, ये नेचुरल फॉर्म में हो गया तो इसको नेचुरल रेडियोएक्टिविटी बोलेंगे. बट सर्टेन एलिमेंट्स लाइक यू कैन से ऑक्सीजन और कार्बन, they are very stable. They do not emit radiations. They are highly stable. Nitrogen, carbon, oxygen, these are all stable elements. As they are already stable, they do not emit any radiation. They don't need to emit any radiations because they are already stable. But if some projectile is made incident on them or bombarded on them, some suitable material or some suitable particle is bombarded on them, it is found that they change their state. Due to the bombardment, they change their state. As their state changes, therefore they become a little bit unstable. Returning back to original stable form, they have to emit certain radiations. Those radiations are called, that is again a radioactivity process, but it was artificially induced. Carbon, nitrogen, oxygen would never emit radiation in their natural form, but when bombarded with a suitable projectile, they are induced to emit certain radiations to achieve their stability back. This phenomenon becomes artificial radioactivity. This becomes artificial radioactivity. यानी radioactivity, activity of emitting radiations in their natural form or artificially induced to emit radiations. क्लास में कुछ बच्चे बहुत शांत बैठे होते हैं, अपनी पढ़ाई से मतलब होता है, पढ़ाकू बच्चे होते हैं, किताबी कीड़े, फ्री पीरियड हो या लेक्चर के बीच में गैप हो, हम लोग तो घूमने निकल पड़ते हैं बाहर क्लास के, पर ये स्टूडेंट्स कैसे होते हैं, बस अपनी जैसे ब्रेक पड़ा छोटा सा, बुक निकाली, पढ़ना शुरू हो गया, अपनी नोटबुक निकाली, होमवर्क शुरू कर दिया, बस ऐसे रहो, एकदम शांत लोग क्लास में होते हैं. देयर प्रेजेंस इज रेयरली फेल्ट इन द क्लासरूम. अब ऐसे शांत बच्चे को शांत देख के अपने को तकलीफ होती है, हम जाके उसको परेशान करना शुरू करते हैं, हे पढ़ाकू, हे चश्मिश चच्चू, क्या कर रहा है. वो हमारी तरफ देखेगा, फिर चुपचाप अपना काम कर लेगा. ही विल अवॉइड अस, इग्नोर अस. हम फिर बाद में उसको उसका बैग खींचेंगे या किताब खींच लेंगे, भाई चलना बाहर चलते हैं, वो आपके हाथ से किताब वापस खींच के पढ़ने बैठ जाएगा. स्टिल हिज रिएक्शन विल नॉट बी हाई. फिर आप क्या करोगे, उसका चश्मा खींच लोगे तो बोलेगा यार तू परेशान मत कर यार, ऐसी मजाक नहीं करा कर, मेरे को बहुत तकलीफ होती है बिना चश्मे के. सी that silent student would never say anything, but you artificially induced him to emit certain radiation. That was artificial radioactivity, example of artificial radioactivity. And कुछ बच्चे तो यूं ही झगड़ते रहते हैं, नेचुरल रेडियोएक्टिविटी. बराबर है, यहाँ पे हम लोग ऐसे ही कुछ पढ़ने वाले हैं. स्टार्ट करते हैं नेचुरल रेडियोएक्टिविटी के बारे में. द स्टोरी डेट्स बैक टू 1895. 1895, Röntgen was a scientist who discovered X-rays. Röntgen discovered X-rays. In the next year, in 1896, a scientist named Becquerel, he was basically an assistant to Röntgen. He was studying relation between X-rays and fluorescence. X-rays and fluorescence के बीच में रिलेशन स्टडी कर रहा था. Now, fluorescence यानी क्या? Fluorescence means it's a property of certain substance to glow when some radiations are incident on them. When radiation are not incident, they do not glow, but when radiations are incident on it, they glow. These are called fluorescent materials, and this property is called fluorescence. You might have seen it in your daily life. At night time, when you're driving, so you find that in the center line, that lane changing line, white color bands are made, but between them there are certain reflectors placed. अब ये रिफ्लेक्टर आप अपनी गाड़ी के हेडलाइट बंद रखोगे तो यू विल नॉट बी एबल टू सी दोज रिफ्लेक्टर्स, बट व्हेन हेडलाइट इज ऑन दे इमीडिएटली शो अप. मतलब क्या हुआ, लाइट गिरी, दे ग्लो.
इवन रोड पे कई बार वो टर्निंग के सिंबल होते हैं, दिन में तो दिखते हैं डायरेक्टली, पर रात को अंधेरे में कैसे दिखेगा, तो उसके लिए दे आर कोटेड विद रिफ्लेक्टिंग मटेरियल्स, दोज आर द फ्लोरेसेंट मटेरियल्स व्हिच आर कोटेड. ओके, तो फ्लोरेसेंट मटेरियल मींस, और हमारी व्हीकल में भी पीछे रिफ्लेक्टर्स होते हैं, ब्रेक लाइट के साथ में कुछ लगा होता है रेड कलर का, जो वैसे तो नहीं दिखता है, ज्यादा ख्याल नहीं आता है, पर जब लाइट गिरती है तो चमकता है, शोइंग दैट देयर इज समथिंग हियर. अब तो नया ट्रेंड निकला है साइकिलिंग का, तो यू माइट हैव सीन दैट साइक्लिस्ट आर नाउ एडवाइज्ड टू कीप रिफ्लेक्टर्स ऑन देयर साइकिल सीट बैक साइड, देन साइकिल का मडगार्ड, बैक मडगार्ड, फ्रंट मडगार्ड, हैंडल के नीचे जहाँ लोगो होता है साइकिल कंपनी का, वहां पे भी, एंड फिर कपड़ों में भी जो पैंट पहना होता है उसके बॉर्डर्स रिफ्लेक्टर्स रखने के हैं, फिर यहाँ पे जो शर्ट पहना था उसके पीछे रिफ्लेक्टर होना चाहिए, यानी दिस दो स्पेशल स्पोर्ट्स गियर्स आर कमिंग. क्यों? क्योंकि आप अर्ली मॉर्निंग जब साइकिलिंग के लिए निकलते हैं तो नॉर्मली पीपल मूव आउट फॉर प्रैक्टिस ऑफ साइकिलिंग एट अराउंड 4-5 o'clock in the morning. Certain times of the year at 4-5 o'clock there is night time, there is darkness, और डार्कनेस में जब वो निकलते हैं रोड पे, बड़े रोड पे निकले हो, तो इट माइट हैपन दैट सम व्हीकल्स में हिट देम. तो इन ऑर्डर दैट व्हीकल्स ऑब्जर्व, vehicles witness that you are already on the road, these are reflectors are placed. Nowadays even the walkers or the joggers in the morning are also advised that they should wear some reflector type material on their jackets in order that during the early morning jogging or walking, क्योंकि अंधेरे में व्हीकल का जब लाइट गिरेगा तो चमकेगा, तो व्हीकल आपको हिट करके ना निकले. बराबर है, तो ये फ्लोरेसेंट मटेरियल से कोटिंग होता है ये सब. ओके, तो Vaccarol was studying relation in X-rays and fluorescence, and he accidentally found that certain elements like uranium in their natural form continuously emit certain radiations, invisible radiations. Uranium in their natural form emit certain radiation, invisible radiations in their natural form continuously. These radiations, this property of emitting radiations in their natural form is called natural radioactivity. Natural radioactivity. ये जो रेडिएशन एमिट है उनको पहले नाम दिया उसने, उन्होंने बैकवर्ड रेस. इनिशियली कॉल्ड देम एज बैकवर्ड रेस, later on they were called radioactive radiations. Later on they were called radioactive radiations. And such substances were given the name radioactive substances. Such substances are called radioactive substances. तो रेडियोएक्टिविटी को ढूंढ निकालने का श्रेय जाता है बैकवर्ड को. ओके, नाउ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस यानी क्या? दीज आर द सब्सटेंस व्हिच आर नेचुरली एमिटिंग देयर रेडिएशंस. बराबर है. इनके बारे में बात करें तो मैडम क्यूरी को तो याद करना बहुत ही जरूरी है. मैडम क्यूरी took pitch blende. She took pitch blende. Now pitch blende is nothing but ore of uranium. Is an ore of uranium. From pitch blende she separated two materials. एक को नाम दे दिया रेडियम, रेडियोएक्टिविटी बना चाहिए रेडियम बोल दिया, एंड दूसरे को नाम दे दिया पोलोनियम. शी सेपरेटेड दीज टू मटेरियल्स. पोलोनियम पीओ. पोलोनियम नेम वाज बेस्ड ऑन हर मदर कंट्री पोलैंड. शी वाज फ्रॉम पोलैंड, सो उसके नाम बेस पर से उन्होंने नाम दे दिया पोलोनियम. नाउ रेडियम पोलोनियम शी सेपरेटेड फ्रॉम यूरेनियम. दीज टू रेडियम एंड पोलोनियम आर रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस. में भी रेडियम के बारे में तो खास क्या कि रेडियोएक्टिविटी ऑफ रेडियम, एक्टिविटी ऑफ रेडियम, activity of radium is found to be 10⁶ times that of uranium. तो यूरेनियम की रेडियोएक्टिविटी के कंपेयर में रेडियम की रेडियोएक्टिविटी 10⁶ टाइम्स, मिलियन टाइम्स ज्यादा है. मतलब रेडियम इज मोर रेडियोएक्टिव एज कंपेयर टू यूरेनियम. जिसमें से वो पैदा हो उससे भी खतरनाक, बेटा बाप से बढ़ के, ऐसा केस हो गया तो. ओके, सो दैट इज रिगार्डिंग रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस. फिर आते हैं रेडियोएक्टिविटी के बारे में. रेडियोएक्टिविटी इज नेवर अफेक्टेड बाय फिजिकल चेंजेस. They are never affected by chemical changes. Physical changes apply करो, chemical changes apply करो, radioactivity phenomenon does not change. बराबर है. इसके बेस पर ऐसा कहा गया, कंक्लूड किया गया कि रेडियोएक्टिविटी इज अ न्यूक्लियर phenomenon connected directly to nucleus. It is nuclear phenomenon, यानी कि डायरेक्टली न्यूक्लियस में से रेडियोएक्टिव रेडिएशंस एमिट होते हैं. ये यहाँ पे कंक्लूड किया गया. रेडियोएक्टिव रेडिएशंस के बारे में बोले तो मैडम क्यूरी ने ढूंढ निकाला. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेडियोएक्टिव रेडिएशंस: अल्फा रेस, बीटा रेस एंड गामा रेस. आपने इनके बारे में डिटेल में इनके बारे में 10th में तो पढ़ा ही है कि अल्फा रेज आर पॉजिटिव इन चार्ज. पॉजिटिव चार्ज. ईच अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट हीलियम न्यूक्लियस. ईच अल्फा पार्टिकल इज हीलियम न्यूक्लियस, यानी हैविंग 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स.
ईच अल्फा पार्टिकल इज हीलियम न्यूक्लियस हैविंग 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स, बराबर है। यानी अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना हो, +2e चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, ये अल्फा पार्टिकल की बात हो गई। एंड मास उसका 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। बीटा रेस की बात करो तो बीटा रेस आर नेगेटिव इन चार्ज, दे आर नेगेटिव इन चार्ज, they are negative, may be positive also, negative or positive. These are nothing but electrons or it may be positons. Electron we denote by E-1 0 and positron we show by E+1 0. यानी beta particle, beta radiations are nothing but stream of beta particles. They may be positive or negative in charge. If they are electrons then positive, protons then positons then negative charge. Electron का antiparticle positron, electrons या positons हो सकते हैं। Gamma rays are neutral in charge, gamma rays are neutral in charge, बराबर है। तो gamma rays के बारे में क्या है, gamma rays क्यों emit होते हैं? They are never emitted independently, they are never emitted independently, never independently emitted, never emitted independently. They are emitted always after beta or alpha or beta radiation, after alpha or beta emission. अल्फा या बीटा एमिट हो जाए उसके बाद में ही दे आर एमिटेड, क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है कि ऑन अल्फा एंड बीटा एमिशन द प्रोडक्ट न्यूक्लियस इज यूजुअली एक्साइटेड फॉर्म में, इन ऑर्डर टू ब्रिंग देम टू नेचुरल स्टेबल फॉर्म गामा रेज आर एमिटेड। ओके, तो गामा रेज प्योरली न्यूट्रल है, तीनों तीन हाईली रेडियोएक्टिव है, तीनों तीन हाईली पेनिट्रेटिव है, दे आयनाइज, देयर आयनाइजिंग पावर इज आल्सो हाई, तो ये आयनाइज कर सकते हैं एलिमेंट्स को, बराबर है। सो इन दैट वे वी कैन से दैट दिस रेडियोएक्टिव रेडिएशन आर लिटिल बिट हैजार्डस फॉर ह्यूमन बीइंग। ओके, तो ये हो गया बेसिक आइडिया रिगार्डिंग नेचुरल रेडियोएक्टिविटी, रेडियोएक्टिव रेडिएशंस एंड रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस। ओके, जस्ट गो थ्रू दिस। चल नेक्स्ट हम चलते हैं रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन या रेडियोएक्टिव डीके के बारे में बात करते हैं ना। ये क्या चीज है, वी नो दैट रेडियोएक्टिव रेडिएशन में अल्फा रेडिएशन, दीज आर नथिंग बट हीलियम न्यूक्लियस, यानी कि 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एन अल्फा पार्टिकल। फिर बीटा पार्टिकल इज आइदर एन इलेक्ट्रॉन और इट्स अ पॉजिट्रॉन, यानी कि या एक इलेक्ट्रॉन है या एक पॉजिट्रॉन है, बराबर, दो में से कुछ एक है, आइदर 1 इलेक्ट्रॉन और 1 पॉजिट्रॉन एज द केस में भी, बराबर है। तो व्हेन अल्फा और बीटा पार्टिकल आर एमिटेड, अगर अल्फा पार्टिकल एमिट होता है तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन निकल जाएंगे सब्सटेंस में से, यानी अगर ये सब्सटेंस रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस है तो इसमें से एक अल्फा पार्टिकल एमिट हुआ, यानी 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन निकल गए, यानी उसमें से अलग हो गए, दिस मच पार्ट इज गॉन, यानी कि द न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट्स, ऐसा बोलते हैं, द न्यूक्लियस डीकेस। डिसइंटीग्रेट मतलब क्या, आप देखो इंटीग्रेशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है, इंटीग्रेशन मीन्स ज्वाइनिंग, डिसइंटीग्रेशन मीन्स ब्रेकिंग। तो एक पार्ट ब्रेक हो गया, ये चला गया अल्फा पार्टिकल बनके, तो ये डिसइंटीग्रेशन हो गया। रेडिएक्टिव रेडिएशन एमिट हुआ, इसलिए हुआ, तो देयरफॉर रेडिएक्टिव डिसइंटीग्रेशन नाम दिया। यानी कि व्हाट वी फाइंड इज दैट व्हेन अ पेरेंट न्यूक्लियस एमिट्स एन अल्फा और बीटा, इट कन्वर्ट्स इनटू सम अदर एलिमेंट। क्यों, क्योंकि 2 प्रोटॉन चले गए तो एटॉमिक नंबर में 2 का फर्क पड़ेगा, तो एलिमेंट चेंज हो जाएगा। तो रेडियोएक्टिव एलिमेंट ऑन एमिटिंग अल्फा और बीटा रेडिएशन कन्वर्ट्स इनटू सम अदर रेडिएशन, sorry, some other particle, then this element, when converts into this element on emitting some radioactive radiations, the phenomenon is called radioactive decay or radioactive disintegration. This phenomenon is called radioactive decay or radioactive disintegration. यानी कि transformation of one element, transformation of a radioactive element into some other element on emission of alpha or beta radiation is called radioactive disintegration or radioactive decay. One who converts is called parent nucleus. One who converts is called parent nucleus, and the newly formed is called daughter nucleus. Newly formed is called daughter nucleus. Okay, ये हो गया। डॉटर न्यूक्लियर में भी रेडियोएक्टिव, मे नॉट बी रेडियोएक्टिव। अगर ये रेडियोएक्टिव तो फिर आगे एमिट करेगा एंड फिर फर्दर डॉटर बनाएगा और ये पेरेंट बन जाएगा उस टाइम पे, एंड सो ऑन द प्रोसेस कंटिन्यूज टिल अ स्टेबल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। So that whole chain is called nuclear chain reaction. Okay, चलो coming back to this, तो ये हो गया पेरेंट न्यूक्लियस, ये हो गया डॉटर न्यूक्लियस। अब कितने एमिट होते हैं पर सेकंड, कितने डिसइंटीग्रेट होते हैं न्यूक्लियस पर सेकंड, दैट्स कॉल्ड रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, दैट कॉल्ड रेट ऑफ रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन और रेडियोएक्टिव डीके।
रेट ऑफ रेडियो एक्टिविटी और रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। इसके बारे में कुछ ऐसा बोलते हैं कि इनिशियली कितने न्यूक्लियर सपोज N0, इनिशियली सपोज N0 न्यूक्लियर आर देयर इन द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, ये सब्सटेंस में N0 न्यूक्लियर है इनिशियली। नाउ स्टेप बाय स्टेप डिसइंटीग्रेशन occurs and they start converting, यानी ये पेरेंट न्यूक्लियस डिक्रीजेस, नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियर डिक्रीजेस एंड दैट ऑफ डॉटर न्यूक्लियर इंक्रीजेस। अब ये डिक्रीज होने लगा रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन के कारण, तो फिर क्या होगा, एज टाइम पासेस N0 डिक्रीजेस, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम प्रिंसिपल इंफिनिटी ऑल ऑफ देम डिसइंटीग्रेट, यानी x पूरा कन्वर्ट हो गया y में, तो x का तो क्या हो गया 0 नंबर ऑफ न्यूक्लियर। तो n शोज द नंबर ऑफ न्यूक्लियर लेफ्ट अनडिसइंटीग्रेटेड, जो डिसइंटीग्रेट नहीं हुए वो, जो इंटैक्ट रह गए वो पेरेंट न्यूक्लियस, बराबर है, कितने बच गए वो, एंड इस अलग अलग टाइम पे नोट करते हैं एज द टाइम पासेस नंबर ऑफ न्यूक्लियर लेफ्ट अनडिसइंटीग्रेटेड गोज ऑन डिक्रीजिंग। सपोज एट एनी टाइम t n न्यूक्लियर लेफ्ट अनडिसइंटीग्रेटेड, एट एनी टाइम t कितने बचे n, आफ्टर टाइम t सपोज इन टाइम डेल्टा n न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेट्स, बराबर, आफ्टर टाइम t सपोज डेल्टा n न्यूक्लियर इन टाइम डेल्टा t, देन डेल्टा n बाय डेल्टा t जो मिला नंबर ऑफ न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेटिंग पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेटिंग पर यूनिट टाइम, उसमें भी इसको करते हैं लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, इसको लिखेंगे dn by dt, डिफरेंशियल फॉर्म में आ गया, एंड इज कॉल्ड dn by dt इज कॉल्ड रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, रेट ऑफ रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन और रेडियोएक्टिव डीके एट टाइम t, ये t टाइम पे रेडियोएक्टिव डीके, बराबर है। सो रेट ऑफ रेडियोएक्टिव डीके या रेट ऑफ रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन एट टाइम t इज गिवन बाय dn by dt, नंबर ऑफ न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेटिंग पर यूनिट टाइम। तो उसके डेफिनेशन में इतना आपको बताना पड़ेगा कि सपोज इन टाइम डेल्टा n न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेट, देन लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, delta n by delta t is called dn by dt is called rate of radioactive disintegration और rate of radioactive decay at time t, इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो गई, बराबर है। अब इसका यूनिट क्या आएगा रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन का, ओके। अब इसको दूसरे वर्ड में एक्टिविटी भी बोलते हैं, दिस आल्सो कॉल्ड एक्टिविटी ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, दिस आल्सो कॉल्ड एक्टिविटी ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। अब रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन बोलेंगे तो dn by dt से डिनोट करेंगे, एक्टिविटी बोलेंगे तो I से डिनोट करेंगे, I इज एक्टिविटी, तो dn by dt और I दोनों सेम ही है, ओके। इसका यूनिट क्या आएगा, तो नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, और यू कैन इवन राइट एज नंबर ऑफ डीके पर सेकेंड, और इवन नंबर ऑफ न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेटेड पर सेकेंड, ये भी लिख सकते हैं, तीनों में से कोई भी फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका एक और यूनिट है बैकवरल, वन बैकवरल इज गिवन एज 1 disintegration per second. If 1 disintegration occurs in every second, then the activity of substance is said to be 1 बैकवरल, एंड इसको ऐसे सिस्टम में फंडामेंटल यूनिट एक्सेप्ट किया गया है, बराबर है 1 बैकवरल। तो 1 बैकवरल को डिफाइन कैसे करते हैं, if 1 disintegration occurs in every second, then the activity is said to be 1 बैकवरल। इवन मैडम क्यूरी के नाम पर से 1 क्यूरी भी बोला जाता है, 1 क्यूरी इज 3.7 into 10⁻10 डिसइंटीग्रेशंस पर सेकेंड। अब इतना हाई वैल्यू क्यों, क्योंकि याद है मैडम क्यूरी ने रेडियम को डिस्कवर किया था, रेडियम को सेपरेट किया था फ्रॉम यूरेनियम, तो वो रेडियम वाज वेरी हाईली एक्टिव, तो उसके कारण एक बड़ा नंबर दे दिया। इफ दिस मच डिसइंटीग्रेशन occurs in 1 second, 3.7 into 10⁻10 disintegration occurs in every second, then the activity of the substance is said to be 1 curie. If 3.7 into 10⁻10 disintegration occurs in every second, then the activity of the substance is said to be 1 curie. अब 1 curie के दो छोटे भाई भी बना दिए, 1 milli curie, that is 10⁻³ curie, and that milli and -3 ना, तो that will be 3.7 into 10⁻7। इसको बैकवर्ड भी बोल सकते हैं ना, और BQ, तो इतना BQ बैकवर्ड। 1 माइक्रो क्यूरी, माइक्रो यानी 10⁻⁻6 curie, so that will be 3.7 into 10⁻⁴ बैकवर्ड, ओके। तो ये डिफरेंट यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, क्लियर। अब इससे आगे चलेंगे, ऑब्टेनिंग द रेडियोएक्टिव लॉ ऑफ डिसइंटीग्रेशन, एक्सपोनेंशियल लॉ फॉर रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन, देख लो चलो इतना।
Next we go on for radioactive decay constant. It is found that experimentally it is found that the rate of decay dn by dt किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ न्यूक्लियर लेफ्ट अनडिसइंटीग्रेटेड. कितने डिसइंटीग्रेट होंगे पर सेकंड, हाउ मेनी विल बी डिसइंटीग्रेटिंग पर सेकंड, दैट डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी आर लेफ्ट अनडिसइंटीग्रेटेड. बराबर है. अब ये प्रोपोर्शनली हटाएं तो dn by dt विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट लैम्बडा इनटू n, n एक माइनस साइन. बराबर है. यहां पे लैम्बडा इज कॉल्ड रेडियोएक्टिव कांस्टेंट, रेडियोएक्टिव डीके कांस्टेंट और रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट. दोनों में से कोई भी नाम दे सकते हैं इसको. बराबर है. तो ये हो गया लैम्बडा. dn by dt इज ऑल्सो कॉल्ड आई, तो इसको आई भी लिख सकते हैं. ये डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट की बात करें तो इसका यूनिट क्या आएगा? न्यूक्लियर पर सेकंड, एंड यहाँ पे न्यूक्लियर, तो न्यूक्लियर न्यूक्लियर उड़ गया. सेकंड इनवर्स इज द यूनिट ऑफ डीके कांस्टेंट. इसका डायमेंशनल फॉर्मूला m0 l0 t-1. लैम्बडा की वैल्यू, लैम्बडा डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है? तो लैम्बडा डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ सब्सटेंस. इट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ सब्सटेंस. कौन सा सब्सटेंस के ऊपर? तो डिफरेंट सब्सटेंस और डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लैम्बडा. अब लैम्बडा का सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ऑफ लैम्बडा, व्हाट डज लैम्बडा सिग्निफाई? सिग्निफिकेंस ऑफ लैम्बडा, लैम्बडा जितना ज्यादा, मोर द लैम्बडा मोर इज द dn by dt. माइनस साइन क्या बताता है? तो सर माइनस साइन क्या बताएगा? माइनस साइन क्यों आया? एज n डिक्रीजेस विथ टाइम, यानी टाइम बढ़ेगा तो t बढ़ता है तो n डिक्रीज होता है. यानी एक डिफरेंस अगर पॉजिटिव है तो दूसरा डिफरेंस नेगेटिव आएगा, एक डिफरेंस अगर पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव आएगा, तो रेशियो नेगेटिव होगा. उस नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए माइनस साइन आती है. तो नेगेटिव साइन क्यों? बिकॉज एज n डिक्रीजेस, बिकॉज n डिक्रीज विद टाइम. समय के साथ n की वैल्यू कम होती है, घड़ी आगे बढ़ती जाएगी, नंबर ऑफ न्यूक्लियर डिक्रीज होते जाएंगे. तो इन ऑर्डर टू बैलेंस दैट नेगेटिविटी यहाँ माइनस साइन रखा है. बाकी इट हैज नो कनेक्शन विद द मैग्नीट्यूड, and minus sign has no connection with magnitude. It just shows decrease in n with time. Okay, it shows decrease in n with passing of time. Clear? इधर minus sign को वैल्यू का कनेक्शन नहीं है. इससे लैम्बडा जितना ज्यादा उतना dn by dt ज्यादा, dn by dt will be more. अब dn by dt ज्यादा होगा मतलब faster disintegrations, क्योंकि number of nuclei disintegrated per second is more. So faster disintegration, तो life short हो जाएगी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस की, क्योंकि रेडियोएक्टिव सब्सटेंस फटाफट कन्वर्ट होने लगेगा तो उसके ओरिजिनल न्यूक्लियर तो कम हो जाएंगे. बराबर है. इससे क्या होगा कि एज द लैम्बडा वैल्यू इज मोर, dn by dt is high, therefore faster disintegration, therefore life of substance is short. So indirectly we can say that life is connected to lambda value. On the other side, if lambda is low, lambda की वैल्यू कम होगी तो dn by dt कम होगा, तो slower disintegrations, and in that case life will be longer, यानी कि that substance will be living for longer time. So lambda can give the idea of life of the radioactive substance. More the lambda, less the life, less the lambda, more is the life, क्योंकि वो एक्टिविटी को डायरेक्टली अफेक्ट करता है. फर्दर नो इफेक्ट ऑफ फिजिकल और केमिकल चेंजेस, नो इफेक्ट ऑफ फिजिकल और केमिकल चेंजेस ऑन लैम्बडा. लैम्बडा पे कोई इफेक्ट ही नहीं है तो ऑब्वियस एक्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा. लैम्बडा इज नॉट अफेक्टेड बाय फिजिकल केमिकल चेंजेस, तो एक्टिविटी विल आल्सो नॉट बी अफेक्टेड. मतलब कि you apply physical changes or chemical changes to a radioactive substance, there is no effect on its radiation emission property. Okay, तो वो तो independent हो गया, उस पर डिपेंड ही नहीं करेगा. And this what proves that it is not connected to electrons of the atom, it is connected directly to the nucleus, and hence we define radioactivity as a nuclear phenomenon. Clear? तो ये हो गया कुछ बातें radioactive constant की. इस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला वन ऑफ द इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के लिए, प्लीज इसे दिमाग में रखें. Just go through this.